تشریف رکھیے گا. ہالےلویا. خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام، اور میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے نیو یروشلم فیملی کو بہت زیادہ مسیح کے تجسم کی بہت بہت مبارک ہو. اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیح کی آمد جو ہے، مسیح کا تجسم لینا جو ہے، وہ دنیا کے لیے خوشی کی بشارت ہے. دنیا کا اندھیرا، دنیا کی تاریکی ختم ہوئی، آفتاب صداقت آیا، حقیقی نور دنیا میں آیا، جس نے آ کر گناہوں اور پاپوں کے نیچے دبے ہوئے انسانوں کو معافی اور نجات کا مسئلہ دیا. آج رات نہایت خوبصورت میسج گڈریوں کو دیا گیا، جو فرشتوں کی ایک گروہ نے دیا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. کلام اقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب ہے. یہ اناجیل اربع ہے. روح القدس اس کا رائٹر ہے. اگرچہ لکھنے والے 4 لوگ ہیں، لیکن روح القدس ایک ہے جو دلوں میں ڈالا گیا ہے، جو یسوع کو، جس کے وسیلہ سے کائنات کی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں، پیش کرتا ہے. متی رسول اس کو بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے. مرکز جو ہے اس کو خادم کے طور پر پیش کرتا ہے. لوکا جو ہے وہ اس کو طبیب کے طور پر، شافی کے طور پر، نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے. اور یوحنا جو ہے وہ اس کو خدا کے بیٹے، جو خدا میں سے خدا، کلمت اللہ کے طور پر اس کو وہ پیش کرتا ہے. یوحنا کی انجیل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح نہایت خوبصورت طور پر اس کی ولادت، اس کا تجسم، اس کا خدا میں سے خدا ہونا، کلمہ خدا مجسم ہو کر دنیا میں آیا، اس کو وہ واضح کرتا ہے. حوالہ دیکھیے گا لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. فرمایا گیا ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو آیا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ گیا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈونٹ مس دا کرائسٹ. یسوع کو کہیں ہم اس تہوار کو مناتے ہوئے کہیں مس نہ کر دیں. یہ روشنیوں کا تہوار ہے، خوشی کا تہوار ہے. اس میں ہم تحفے تحائف دیتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، چرنی، ستار، کرسمس ٹری اور بہت ساری اور رسومات، اور اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں،
खुशी करते हैं, केक कटिंग होती है और उसको जीसस क्राइस्ट को हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। लेकिन इस सारी मसरूफियत के अंदर, इस सारी तैयारी के अंदर, इस सब कुछ करने के अंदर बहुत दफा हम उसको पीछे छोड़ जाते हैं जिसके लिए इकट्ठा हुआ जा रहा है। क्योंकि क्राइस्ट और मास जो है ये दो लफ्जों का मजमुआ है। क्राइस्ट का मतलब मसीह और मास का मतलब जिसकी इबादत की जाए, जिसको सजदा किया जाए या जिसका इज्तिमा है, जिसके लिए इकट्ठा हुआ गया है। और बहुत दफा जिसके लिए इकट्ठा हुआ जाता है हम उसको मिस कर देते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं। जहां पर चार ऐसी शख्सियतें हैं जिन पर हम आज गौर करेंगे कि उन्होंने यीशु को मिस कर दिया, और चार ऐसी शख्सियतें भी मैं आपके सामने पेश करूंगा जिन्होंने यीशु को पा लिया, यीशु को मिल लिया। नंबर 1 पर जब यीशु की पैदाइश हुई तो कैसर अगुस्तस का हुक्म जारी हुआ कि पूरी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। अगरचे ये उसका प्लान था, लेकिन इसकी पूरे तौर पर इसको लुक आफ्टर कर रहा था खुदा कादर मुतलिक जो परवरदिगार है। वो बैतलहम को जो आम इलाका है खास बनाने वाला था। मीका नबी की पेशगोई के मुताबिक कि ऐ बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हाकिमों में सबसे छोटा है, तो भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। और इसी पेशनगोई के तहत हम देखते हैं कि मरियम मुकस्सा जो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाएगी, और उसका शौहर यूसुफ जो उसे चुपके से छोड़ देना चाहता था, लेकिन फरिश्ता ने उसको बताया उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और हम देखते हैं कि मरियम और यूसुफ जो हैं वो इकट्ठे रहे, वो अपनी बीवी को ले आया, और फिर हम देखते हैं उसके वज़े हमल का वक्त आ गया और वो बैतलहम को नाम लिखवाने के लिए, मर्तब शुमारी के लिए गए। और वहां पर हम ये देखते हैं कि उसके वज़े हमल का वक्त आ गया। यहां पर एक शख्स से उनकी मुलाकात होती है, और वो सराय का मालिक है, जो पूरे होटल का मालिक है, जिसके पास बहुत सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और वो वहां पर उनको जगह दे रहा है, बेड्स दे रहा है, रूम्स दे रहा है। अच्छा बेटी को चुप कराइए, पीछे ले जाए। वो उसको पूरे तौर पर वो वहां पर उसके लिए जगह नहीं है। अब ये मजबूर है कि उसकी बीवी मरियम का वज़े हमल का वक्त आ गया है, लेकिन होटल का मालिक, सराय का मालिक, कलाम कहता है उनके वास्ते उस सराय में जगह नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? उनके लिए अस्तबल में जगह, उनके लिए चरने की जगह, उनके लिए वो जगह जहां पर जानवर चारा खाते हैं, जहां पर सर्दी भी है, जहां पर कोई काम ऐसा नहीं, आसानी नहीं है। तो हम देखते हैं कि वहां पर ये देखा कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई आसानी नहीं है, कोई वोमेंस नहीं है कि मरियम मुकस्सा के वज़े हमल का वक्त आ गया और वहां पर कोई उनको मेडिकली आसानी मिली हो, कोई वहां पर उनको वोमेंस की सपोर्ट मिली हो, और वो वहां पर मियां बीवी तनहा और ये अकेली औरत, और वो भी ऐसी हालत में जब वो लेबर पेन से है। और कलाम कहता है उसके बेटा पैदा हुआ। लेकिन यहां पर जो सराय का मालिक है उसको देखते हैं, यीशु उसके सराय में है, पैदाइश हो रही है, दुनिया का मालिक है, कायनात को तख्लीक करने वाला है, लेकिन वो इसको मिस कर रहा है, वो इसकी तरफ नहीं देख रहा, वो इसके लिए जगह प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो इसको टाइम नहीं दे पा रहा। हो सकता है बाद में सपने में जगह देने के बाद उसने बाद आगे चेक भी ना किया हो कि भाई की बने देगा। आज बहुत दफा हम अपने बिजनेस, हम अपने पैसे रुपए को बढ़ाने के चक्कर में हम यीशु को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे बिजनेस का लॉस हो जाएगा अगर मैं खुदावंद को टाइम दूंगा, खुदावंद के लिए अवेलेबल हूंगा या खुदावंद को मुड़ मुड़ कर देखूंगा। हम बहुत दफा सर्दी, गर्मी, बिजनेस, कारोबार, नौकरी के चक्कर में हम बहुत दफा यीशु को मिस कर देते, छोड़ देते पीछे। ऐसा इस्राएल के मालिक ने किया। ये अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था, लेकिन इसे मालूम नहीं हुआ कि यीशु इसके पास आ चुका है। यीशु वहां पर है, वो बाकी मेहमानों की बात कर रहा था, उनको कंफर्टेबल कर रहा था, कंबल मिल गया, सर्दी दिन लग रही,
मुश्किल तो नहीं, कंफर्टेबल हो, लेकिन वो मालिकों के मालिक के बारे में नहीं सोच रहा था कि वो भी उसका मेहमान है। उसके सराय में एक ऐसा मेहमान भी आ चुका है, वो उसके बारे में नहीं सोच रहा था। कभी कभी हम और मेहमानों के चक्कर में होते हैं और उस मेहमान को मिस कर देते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यीशु ने शमौन फरीसी के घर जाकर एक बार ये कहा, शमौन मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे बोसा नहीं दिया, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव नहीं धोए। बहुत दफा हम ऐसे ही कर देते हैं। मेरे अजीज बहनों भाई, पहना लगे हो, जल्दी से जो क्या लगे हो, फटाफट हो जाता हो, फटाफट। दूसरी शख्सियत है, वो है मत्ती के अंजील उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से, जल्दी से पढ़ दीजिएगा। मत्ती के अंजील दूसरा बाब उसकी पहली आयत से। हाँ जी। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम में सब लोग क्या हो गए, घबरा गए। दूसरी शख्सियत हेरोदेस बादशाह है जो यीशु की पैदाइश से घबरा गया है। ये इसका बाप अदूमी था और उसने यहूदी मजहब अख्तियार किया हुआ था। ये हेरोदेस जो है ये बादशाह तब बना जब इसने रोमियो के लिए पार्थी लोगों से जंग करके उनको शिकस्त दी, तो फिर कैसर ने इसको जो है वो बादशाह लगा दिया था। ये अपनी बादशाह से बड़ी मोहब्बत करता, सेल्फिश बादशाह है ये। इसने अपने 2 बेटों को भी कत्ल करवा दिया जब इससे ये पता चला कि वो मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, मुझे मारने के बारे में। अपने मरने से 5 दिन पहले इसने अपने एक और बेटे को मार दिया, इसके 12 बेटे थे, सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो मेरी बादशाह पर कब्जा ना कर दे। इसने अपने साले को मरवा दिया था, इसने अपनी बीवी को मरवा दिया था और इसने अपनी सास को भी मरवा दिया था। और ये बहुत जालिम था। इसने यहूदियों में से बहुत सारे मोअज़्ज़िन जो है वो कैद कर रखे थे कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन उनको भी मार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने तो रोना कोई होना नहीं, चलो उन्हें मोअज़्ज़िन रोंगे तो मेरा भी जनाजा हो जाएगा। ये बड़ा संगदिल शख्स था, सेल्फिश, अपनी हुकूमत से प्यार करता, पावर में अपनी पावर को समझता, ये ताकत सब कुछ है, ये ताकत का नशा। और ऐसा नशा फिरौन बादशाह को भी था। जब बैरकूज़ा में से मूसा की क़यादत में बनी इस्राइल पार जा रहे थे, वो अपने चीदा सरदारों, अपने रथों, अपनी पूरी पावर, पूरी आर्मी समेत उसका पीछा करता है और समझता मैं इनको वापस ले आऊंगा। और उसने अपने रथ घोड़े जो हैं समंदर में डाल दिए और वो गर्क हो गया पानी में। ये भी इसी पावर में था। बादशाह मेरे होते हुए कोई बादशाह पैदा नहीं हुए, बादशाह थे बनाए जाते ने, लेकिन ये क्या मेरी हुकूमत में, मेरे दाखिला हुकूमत के अंदर ये कैसी खबर, बादशाह पैदा हो चुका है मेरे होते हुए। मैंने अपने लड़कों को, बेटों को मरवा दिया, बीवी को मरवा दिया, सास को मरवा दिया, साले को मरवा दिया, लेकिन मैं कोई अपनी जगह पर बादशाह नहीं पैदा होने दूंगा। और इसने यीशु को मिस कर दिया। खबर मिली बादशाह पैदा हुए, बादशाहों का बादशाह, उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह। काश ये समझ पाता कि मैं छोटा सा बादशाह हूं, थोड़े से इलाके का, लेकिन वो तो कायनात का बादशाह है जिसकी खबर मिल रही है। इसने मिस कर दिया यीशु को, देखने नहीं चाहा, मिलना नहीं चाहा, बल्कि इसने एक सियासत खेली। एक इसके जहन की बीमारी देखें, कमजोर जहन और उसकी गलाजत। ये चुपके से मजूसों को बुलाता है और उससे कहता है उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, जब वो मिले मुझे खबर दो, मैं भी उसको क्या करूंगा, करना चाहता सी वाला कोई झूठा फ्रॉडी। आज बहुत दफा हम यीशु के साथ ऐसा खेल खेलते हैं, हमारे अंदर भी हेरोदेस जैसी जहनियत पाई जाती है। हम अपने ताकत, पैसे, पावर, ओहदों के चक्कर में कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मैं उसकी इबादत नहीं करता, हदिया नहीं देता, प्रस्तश नहीं करता, उसकी हजूरी में जाता, चर्च नहीं जाता, अपनी पावर में है और सी बहुत कोशिश खुद अपनी जात बादशाह में, लेकिन यीशु को मिस कर देते हैं। और ये बड़ा अजीब ज़हन का शख्स है। जब इससे पता चला कि
मजूसियों को फरिश्ता ने बताया ख्वाब में, दूजी रात चल जियो, वापस हेरोदेस को नहीं जाना, ये बंदा ठीक नहीं था। राहें बदल दी खुदावंद ने, जब उसकी रहनुमाई में चलेंगे राहें चेंज हो जाएंगी। कलाम ये कहता है वो दूसरी राह से अपने मुल्क को चले गए। जब ये हेरोदेस को पता चला कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की है, अब मेरे पावर वाला बंदा, फौजा मेरे को, पावर मेरे को, आर्मी मेरे को, मेरे ना हंसी ठट्ठा कर गए ने, उसने एकदम गुस्से से वो पागल हो गया। अपनी बादशाही से बड़ी मोहब्बत करता था, इस कदर पागलपन का धोरा पड़ा। इसने मजूसियों के बताए हुए टाइम पीरियड के मुताबिक जितने बच्चे 2-2 साल और उससे छोटे थे उन सबको क्या करवा दिया, कत्ल करवा दिया। हुआ तो ये पेशन गोई के मुताबिक ही है। रामा में आवाज सुनाई देती है, रोना और बड़ा मातम, राखल अपने बच्चों को रो रही है, तसल्ली कबूल नहीं करती। लेकिन इसके पीछे बादशाह की पावर, उसकी सोच, उसका ख्याल, और उसने बच्चों को कत्ल करवा दिया। यसु नहीं सुने बच्चे। ऐसा शख्स हमारी जिंदगी भी कभी कभी कैसर हेरोदेस जैसी बन जाती है। हम कभी कभी यीशु को छोड़ देते हैं और अपनी पावर में रहते हैं, और इस तरह से हम उसको अपना बादशाह नहीं मानते। क्योंकि अगर बादशाह आका मानेंगे, खुदामंद मानेंगे, उसके गुलाम होंगे। जो आका है उसका गुलाम भी है, और जो गुलाम है उसका कोई आका भी है। हम खुदामंद को बॉस नहीं मानते, हम उसको आका नहीं जानते। हम कहते हैं कि वो भी मेरा मालिक है। हम अपनी जिंदगी के मर्जी के खुद मालिक बने हुए हैं, और ये सबसे बड़ी खराबी है। नंबर 3 शख्सियत, यहां 3 आयत दोबारा पढ़िएगा। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा किया और उनसे पूछा मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। अब गौर कीजिएगा, मजहबी लीडरशिप यहां आ चुकी है। हेरोदेस बड़ा चालाक है, उसने उनको भी बुला लिया। मजूसी आए हुए हैं, सितारा देखा है, सितारे ने रहनुमाई की है, तुसी भी दिया दो ना भाई, यार चोले पाए ने जनाब। और जनाब मजहबी लीडरशिप पहुंची वहां पर, किताबें खोली गई, सहाफ़े अंबिया खोले गए, और फिर उन किताबों में मीका नबी का सहीफा निकाला गया। एक ने फटाफट क्या, मैं तो पहले उंगल रख के लिया ऐसा, मैं तो निशान ला के लिया ऐसा, मैंने पता सी ऐ मीका नबी की पेशन कोई है। क्या पढ़ा जी? उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत जो मीका नबी है, अंबिया असगर में से है, उसने बताया है, यूं लिखा हुआ है, ऐ बैतलहम, हाँ जी, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की क्या करेगा, गलाबानी करेगा। अफसोस पड़े हैं, मजहबी लीडरशिप जानते हैं, लेकिन मिस्टर क्राइस्ट यीशु को देखने के लिए रेडी नहीं है। हवाले हम दे रहे, किताबों में पढ़ा है, अपनी मजहबी रसूमात में अपने आप को रास्तबाज जताते, अपने लिबास का दूसरे लिबास के साथ टच ना होने देते, लोगों से हाथ नहीं मिलाते पलीत ने, और इनकी दुआएं ऐसी होती कि खुदावंद हम गैर कौम नहीं है, खुदावंद हम महसूल लेने वाले नहीं है, हम कसबी नहीं है, बात चलनी नहीं है, शराब नोशी नहीं है, असी बड़े चंगे हैं, दुनिया जैसे नहीं है, कट्टर मजहबी जनूनी। लेकिन मसीह की पेशन हुई पड़ी, मसीह के बारे में जाना, खबर मिली, पर मिस्टर क्राइस्ट यीशु को कबूल नहीं किया, देखने के लिए नहीं गए, यीशु को अपनी जिंदगी में नहीं लिया कि अगर इसके बारे में किताबों में लिखा है, सहाफ़े अंबिया में लिखा है, फिर चलिए ना जाके देख ही लीजिए, खबर भी मिलन रही है। मजूसी जी दूरों आ गए ने, असी भी चलिए। सराय का मालिक मिस कर गया, कारोबार बिजनेस के चक्कर में, हेरोदेस ताकत के नशे में मिस कर गया, सिर्फ मैं ही मैं, मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। मजहबी लीडरशिप अपने मजहबी चक्रां दे विच आला कुर्सियां सलामा ये होनी चाहिए ने, लेकिन यीशु के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। आगे एक और शख्सियत है, 3 आज पढ़िएगा, हाँ जी,
हाँ जी, दूसरे बाप की 3 आयत। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अच्छा, वेरी गुड। सराय का मालिक, नंबर 2 हेरोदिस, नंबर 3 मजहबी लीडरशिप फकीर फरीसी का, और फिर चौथे आम लोग, आम जनता ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚ। ये भी बड़ी खतरनाक शख्सियतें हैं, ये किसी चंगे माड़े च नहीं गए, लेकिन घबराए हुए हैं, अपने बादशाह की नेचर से वाकिफ हैं और घबराए हुए हैं कि इन्हें पहले बड़े बंदे मरवाने, जेड़े घर नूं नहीं छड्या ने, अपने बच्चों नूं छड्या, सानूं भी छड्डेगा। ये कैसे खबर मिल गई है? और ये चुपते फिर रहे हैं, घबराए हुए, थरथराट, टांगे कांप रही हैं, लेकिन यीशु के लिए रेडी नहीं हुए। ये इतनी खतरनाक जनता है, इतने खतरनाक ये आम लोग हैं। इन्होंने यीशु की मसलूबियत के वक्त पिलातुस से रिक्वेस्ट कर दी थी, सानू यीशु नहीं चाहिए, सानू बराबर डाकू दे दो। ये आम लोग इतने खतरनाक होते हैं, दिल कहते सानू की लगे। और इन्होंने इस कदर घबराहट में तमाम बातें भूल गए जो वहां बादशाह हेरोदिस के दरबार में हो रही थी, बातें वो भी मिस कर दी। जो मजूसी बातें कर रहे थे, जो मजहबी लीडरशिप किताबें खोल के पढ़ रही थी, जो हेरोदिस का एक्शन था, सब कुछ को मिस किया। ये भी नहीं तैयार हुए, हालांकि हेरोदिस के जुल्म में थे, रोमी हुकूमत, लोग इन पर हुकूमत कर रहे थे, ये गुलाम थे और मुंतजिर थे कि यीशु बादशाह आएगा, हमें आजादी देगा, रिहाई देगा, निजात देगा। लेकिन मिस द क्राइस्ट, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। ये यीशु के लिए रेडी नहीं हुए, हालांकि समझते थे कि शायद यीशु रिहाई देगा, पर तैयार नहीं हुए। कोई रेडी नहीं हुआ कि मजूसियों के साथ चले चले, भजन तुसी सानू लै चलो, असीं वेखना चाहते हैं। इन्हां को तो टाइम नहीं गा, किसी के पास टाइम नहीं, ना हेरोदिस के पास, ना सराय के मालिक के पास, ना आम लोगों के पास, ना मजहबी लीडरशिप के पास। कुछ के पास टाइम था, उनकी तरफ आते हैं। लूका 2 बाब उसकी 8वीं आयत। और उसी इलाका में चरवाहे, पढ़ दीजिएगा जल्दी से, निकाल लीजिएगा। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर चमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, देख, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनच्ची पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए निशान है, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चलनी में पड़ा हुआ पाओ। और उस फरिश्ता के साथ यकायक आसमानी लश्कर के घरों खुदा की हामद करती है, कहती हुई जाहिर हुई, आज में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। सुना, जब फरिश्ते आसमान पर चले गए, इन गधेड़ों ने क्या किया? क्या लिखा है 15वीं आयत? जब फरिश्ते उनके पास आसमान पर चले गए हैं, तो ऐसा हुआ चरवाहों ने आपस में बात की कि आओ हम कहां चले? बैतलहम को चले। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको क्या दी है? खबर दी है, जाकर देखें। ताली बजा दीजिएगा इनके लिए, चरवाहों के लिए, इनकी जबरदस्त एक्शन के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। जबरदस्त एक्शन है। हेरोदिस, सराय का मालिक, आम लोग, मजहबी लीडरशिप ने ऐसा एक्शन नहीं लिया। खबर तो उन्होंने मिली, इनको जब खबर मिली है, आओ जाकर देखें, आओ चले बैतलहम तक। ये नहीं कि पाजी मेरे कपड़े गंदे जे, ड्राई क्लीन ना करा लिए, दर्जी को ले आने, दर्जी दुकान बंद कर गया, कोई ब्यूटी पार्लर, कोई सैलून चला गया, कोई कहता कपड़े लैन गया, कोई कहता दर्जी को पेने पा के जाने ने, सवेरे चलना ये हुण नेरा बहुत हो गया, ठंड बहुत हो गई है, कोई कहता सवारी नहीं। ऐसा हुआ है, ऐसा आडे बन ने सारे। खबरें हम तक भी पहुंचती हैं यीशु की। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इन्होंने मिस नहीं किया, फौरन से यीशु के लिए अवेलेबल। यीशु आ गया, फरिश्तों ने खबर दी, हमें पता चला है, फौरन से ये यीशु के पास चले गए। बेटे बैठ जाओ, फौरन से इसके पास चले गए। डोंट मिस द क्राइस्ट। हम यीशु के लिए अवेलेबल नहीं। हम लिखते हैं डोंट डिस्टर्ब जीसस, सानू डिस्टर्ब ना करें, सौन लगे हैं, नींद ही नुगड़ दी, तो आज नहीं नींद नुगड़ दी। इस ईद पर ईद
کپڑے نہیں گئے بازیاں ناراض بندیاں نال کپڑے نہیں لاتے مینوں نیلے لگ دیتے چٹے لگ دیتے میں نہیں لینے میرا غصہ رہ گیا جُتی رہ گئی پارلر والی چلے گئی ہونی مینوں ٹائم ملا مینوں مہندی لگی ڈونٹ مس دا کرائسٹ ان باتوں میں یسوع کو نہ دیکھیں یسوع کو فوراً جا کر سجدہ کرنے کے بارے میں سوچیں چرواہوں نے فوراً کہا جس کی خبر ملی ہے کپڑے نہیں دیکھے چیزیں دیکھی اور چرواہوں کو تو ویسے بدبو آتی ہونی ہے فوراً سے یسوع کو جا کر دیکھا ایک اور شخصیت ہے لوکا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی پڑھیے گا 25ویں آیت 2 باب 25 آیت دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا آدمی راست باز اس راست باز کے لیے زور کا خالی بچا دیجیے گا یہ شخص راست باز اور خدا ترس اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور ونڈرفل رول قدس اس پر تھا ہیرودیس پر نہیں تھا مذہبی لیڈرز پر رول قدس نہیں تھا اسرائیل کے مالک پر رول قدس نہیں تھا عام لوگوں پر رول قدس نہیں تھا لیکن اس شخص پر یہ راست باز اس کی کوالٹی ہے تسلی کا منتظر رول قدس اس پر اور یہ اس کو اچھا رودی آواز نہیں سنتا ہے رول قدس سے آگاہی ہوئی تھی جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا اے بندہ بہت مشکل سے ہے بڑی عمر ہوگی عمر رسیدہ ہے مسیح نے دیکھے گا تے زمین کا سفر ختم ہوئے گا کیا لکھا آگے اچھا روح القدس کی ہدایت سے ہیکل میں آیا روز آندہ ہوں شاید آج یسوع بچہ آئے گا آج میں ملوں گا اس کو روزانہ عمر رسیدہ چلنے سے کہا سب ساڑھے دے تے گوڑے پیڑوں اسی چرچ نہیں آندے کی ہے چرچ نہیں آندے لک پیڑوں گا چرچ نہیں آندے گوڑا پیڑوں گا چرچ نہیں آندے موڑا پیڑوں گا بہن سکتے ڈیوٹی دے بہنے ہیں کام دے جانے ہیں پہلے سارا صرف چرچ والی لاکے پیڑ گوڑا پیڑ موڑا پیڑ Don't miss the Christ. یہ بہانے کب تک یسوع کو مس کر رہے ہیں کس کی بشارت کون نجات دہندہ ہے آپ کا یہ ہر روز آتا ہے عمر رسیدہ کیا لکھا ہے روح القدس نے اس کو بتایا ہاں جی آگاہی ہوئی ہیکل میں آ گیا جس وقت ماں باپ اس بچے کو یسوع کو اندر لائیں تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کرے اس نے یسوع کو اپنی گود میں لے لی اس قدر قریب آ گیا Oh wonderful Jesus Praise the Lord یہ ہے وہ نجات اے مالک اب تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھی ساڑھے بابے تے مردے جانے نے پر توبہ نہیں کرنا چاہتے اسی نے جناب پرانی مشن دے وچ پھسے رہنا ہے پرانے عقیدے وچ پھسے رہنا ہے اور پرانے کاماں وچ پھسے رہنا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات دی اس نجات کو مس نہ کریں جنہوں نے مس کیا بڑے برے حال ہیں انہوں نے مس نہیں کیا چرواہوں نے مس نہیں کیا اس شمعون نے مس نہیں کیا میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی اب تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کرتا ہے میرا زمین کا سفر مکمل ہو جائے مائک بند کرے باقی میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے میں خداوند میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لی ہے اور یہ اپنے زمین کے سفر کو ایسے مکمل کرتا ہے سفر جیسے کہہ رہا تھا خداوند یسوع میری روح کو قبول کر آج کیا کوئی مسیحی کوئی ایماندار یہ کہہ سکتا ہے میری روح کو قبول کر کیونکہ وہ اس کا منتظر نہیں ہے وہ تے دو طرح دے پوترے نو بیان چکر پیا ہے کدی خداوند میرے پوترے دا بیاہ نوا دینا میں نہیں کچھ نہیں چاہیے میں کہنا میرے جیندے جینا میں اگر پوترے دا کچھ بیچ ہی جاواں خوشی تے چنگائی مسیح کی نجات مسیح کو پانے کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے معافی کی نجات کی مسیح سے ملنے کی کوئی تمنا نہیں کوئی آرزو نہیں ہے ایک ہی آرزو سویرے شام ایک ہی دعا ہے بچہ بیاہ اگو تو میں بچے بھی بس اور کوئی ساری کو خواہش کو نہیں ہو نجات کی خواہش نہیں یسوع کی خواہش نہیں یسوع کو ملنے کے بارے میں کوئی فکر نہیں
एक और शख्सियत भी है, इसी में आइएगा लूका के 2 बाब में और उसकी 36 आयत पढ़ेंगे। 36 और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनूएल फनुएल की बेटी एक एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी। और उसने अपने कुमारपन के बाद 7 वर्ष एक शोहर के साथ गुजारे थे और वो 84 वर्ष से क्या थी? बेवा थी। 84 से 70 91 साल। और उसकी शादी अगर 16 साल की उम्र में हुई है तो फिर लगा लें कि 106-7 साल हो गए। इतनी उम्र रसीदा, लेकिन हैकल में दुआओं और रोजों के साथ आती थी। उनको है कोई भी नहीं, इतनी उम्र रसीदा कोई नहीं, 6.5 इतनी दुआ रोज यारी कोई नहीं होगी। और आगे इसकी बारी क्वालिटी क्या है देखें। हाँ जी, हैकल से जुदा नहीं, 6.5 महीने ना भावे गिरजे टाइम नहीं लगता, मसरूफियत बड़ी, कुरमाल सोरियाल पेकियाल, बस एक की जिंदगी है। इधर गए उधर गए, इधर गए उधर गए, यस्सु को टाइम नहीं। ये हैकल से जुदा नहीं होती। आगे क्या लिखा है जी? बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। वंडरफुल। और उसी घड़ी वो भी होती आ गई हैकल जी। वंडरफुल है, एक रूह देने रास्तबाज है वे रूहानी ये है। मजहबी लीडरशिप नु चोले पाने आंदे सन, किताबां मोटियां मोटियां है सन, पढ़े बहुते सन, लेकिन रूह कुदस का तजर्बा नहीं सी। रूह कुदस ने उसको भी आगाही दी थी, रूह कुदस ने इसको भी आगाही दी है। और खुदा का कलाम कहता है रूह कुदस से इसको आगाही हुई। ये भी उसी टाइम वहां आ गई और वहां पर आकर खुदा का शुक्र करने लगी। हम शुक्र नहीं करते, साढ़े को शुक्र कोई नहीं है। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਭੈਣਾ ਕਾਂਟਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਆਈ, ਸੂਟ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈ, ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ को ले आई। ये बातें, ये शुक्र कर रही है, यीशु को मिलने आई हूं, निजात पाई है, इबादत की है। कई कहने ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तुझे नाम ये कोई गल नहीं। मेरे आज रात बेचारे बूहे खड़का करके बाजी आ जा, भैन आ जा, भाई आ जा, चलो तुसी आए। वैसे उन्होंने तो पता लग जाना चाहिए ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। मिस द क्राइस्ट। लेकिन कलाम ये कहता है ऐसे लोग जिन्होंने क्रिसमस ना मनाया, यीशु को मिस कर दिया ड्यूटियों, कारोबार, ओहदों के चक्कर में, इन्होंने छोड़ दिया। चरवाहों ने नहीं छोड़ा, हन्ना ने नहीं छोड़ा, शमौन ने नहीं छोड़ा। ये यीशु को मिलने के लिए गए। मजूसी यीशु को मिलने के लिए डर भी बड़ा लग गया। बादशाह दरबार से परेशान निकले, यार तो बड़ा काम खराब हो गया, बादशाह पीछे पै गया। लेकिन जब यीशु को मिलने गए, कलाम कहता है उन्होंने यीशु बच्चे को देखा, अपने डिब्बे खोले ते खाली खाली। ओ यीशु अगली पहली, बस ऐसी मुश्किल थोड़ी थी। अगली बार अपने डिब्बे खोले, सोना, लुभान और मोहर उसको क्या किया? नजराना ही कोनी साढ़े को नजराना। इन 4 लोगों ने यीशु को मिस नहीं किया, क्रिसमस मनाया, तजस्सुम की खुशी मनाई। आखिरी बात यूहन्ना के इंजील 1 बाब 10वीं आयत से, हम कहां पे हैं? क्या हम मिस कर रहे हैं? डोंट मिस द क्राइस्ट। नहीं निकले। वो दुनिया में था, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। क्रिएटर, और दुनिया ने उसे केड़ा मसीह, कौन मसीह बादशाह, कौन मुनज्जी, कौन निजात देने वाला? आई डोंट नो, क्योंकि हम उसको जानते नहीं। कलाम कहता दुनिया उससे नहीं पहचाना और वो अपने घर आया। मजहबी लीडर ने भी और उसके अपने ने पहचाना, भाले पड़े पर पता नहीं लग गया। आगे लेकिन जितनों ने उसे
قبول کیا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یوحنا کہتا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جسے ہم نے دیکھا غور سے دیکھا بچہ اپنے ہاتھوں سے چھوا. اس زندگی کے کلام کی بابت پہلے تم کوئی امت نہ تھے لیکن اب تم ایک امت ہو. تم ایک برگزیدہ نسل شاہی کہنے کا فرقہ مقدس قوم ہو. اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے سجدہ کر لیں گے شکر کر لیں گے اس کے منتظر ہوں گے آپ کی زندگی میں وہ آ جائے گا. آپ کو آسمانی برکتیں دے گا. عیسائی کے تختوں پر بیٹھیں گے دنیا کا انصاف کریں گے فرشتوں کا انصاف کریں گے نئے یروشلم میں سونے کی سڑکوں پر اس کے ساتھ سیر کریں گے. آسمان کی بادشاہی میں عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. لیکن ڈونٹ مس دا کرائسٹ. اگر آپ نے اس کو مس کر دیا اس کو ملے نہیں نجات نہیں پائی تو پھر کرسمس آپ کا نہیں ہو سکتا. کرسمس اس کا ہے جو چرواہے ہیں جو شمعون ہے جو فنل کی بیٹی ہنہ ہے جو مجوسی ہیں. خدا اس کام کے وسیلے سے ہم سب کو